Okay, so we are beginning with today's class. In today's class, we'll be, first of all, let me introduce myself. Hi everyone, my name is Nimisha Agrawal and I'm faculty at LegalStix Law School, and I'll be teaching you the further parts of Indian Constitution. In today's class, we'll be talking about directive principles of state policy and also fundamental duties. As you can see that the articles which cover DPSP is from Article 36 to 51, and fundamental duties has been enshrined under Article 51A. So coming and talking about direct principles of state policy, कि ये क्या है, what these are and why were they inserted in Indian Constitution and everything. So basically इसका जो ओरिजिन है या फिर हमने इसका आइडिया जो था वो कहाँ से लिया था, तो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसका जो आइडिया था डीपीएसपी का वो हमने लिया और हमारे पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एन्यूमरेट किया. द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड डीपीएसपी इज टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट. ठीक है, ये जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट जो आया था वो हम इसलिए लेकर आए थे ताकि जो हमारा जो स्टेट है उसमें हर किसी के मतलब स्टेट जो है वो इस तरह से अपनी कुछ it could achieve more. Establish political democracy. पॉलिटिक्स से या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से डीपीएसपी का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं था, बल्कि ये हम लोग इसलिए लेकर आए थे ताकि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो स्टेट में बनी रहे. एंड दैट इज रियली इम्पोर्टेंट कि ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये रहेगी इन उसी अगर ये रहती है तभी जो है हमारा स्टेट जो होगा वो फ्लरिश कर सकेगा. So these are some basic principles or instructions or guidelines for the government while formulating laws, policies of the countries in executing them. ये एक सेट ऑफ डायरेक्शंस है क्योंकि स्टेट को दिए गए हैं कि स्टेट जब भी कभी कोई लॉ बनाता है, कोई लॉ फॉर्मुलेट करता है, तो उस लॉ को फॉर्मुलेट करते टाइम स्टेट कैन लुक एट दीज डीपीएसपी और उनको देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए वो आगे लॉज और पॉलिसीज जो है कंट्री के लिए फ्रेम करें. सो एज सेड ये गाइडलाइन की तरह काम करता है स्टेट के लिए और इसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए. बट अगेन एज these are certain directions, these are certain guidelines, तो इन चीजों को we cannot compel the state to consider and follow. कोई compulsion नहीं होता है, but the state should look at these guidelines and follow them. Talking about the part 4 of Indian Constitution, see, it consists of DPSP as told earlier. You can see that the articles covered is 36 to 51. अब यहाँ पे आर्टिकल 36 और 37 जो है वो क्या कहता है, तो यहाँ पे आर्टिकल 36 जो है basically defines the term state as the one who has to keep in mind to all DPSP before formulating any policy or law for the country. यहाँ पे जो स्टेट की डेफिनेशन है पार्ट 4 में वो सेम रहेगी एज दैट ऑफ पार्ट 3 unless the context otherwise requires a change. यानी कि जो स्टेट की डेफिनेशन हमें पहले हम लोगों ने जो पढ़ी थी स्टेट की डेफिनेशन पिछले पार्ट में, वो स्टेट की डेफिनेशन सेम रहेगी यहाँ पे भी. कब तक? जब तक कि हमको बाद में ये बताया ना गया और स्पेसिफिकली कि स्टेट की कोई दूसरी डेफिनेशन होगी तो वो क्या होगी. In Article 37, the nature of DPSP has been defined. क्या उसका नेचर है? And DPSP are non-justiciable. हम इनको enforce नहीं करा सकते हैं. हम इसके पीछे हम स्टेट को कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आप ये फॉलो करें, और ऐसा नहीं है कि अगर स्टेट ने फॉलो नहीं करा then we can take it to the court. No, this is not happening in DPSP. You can see on the screen that there are the list of the DPSPs.
On one hand, there are the articles mentioned, and on the other hand, what did the article says? You can see Article 36, it defines the state. Article 37, it tells about Part 4 of Indian Constitution. From Article 44 to 51, you can see what are the headings. Okay, so coming back to Article 36, as I earlier told you, it contains the definition of state. Unless the context otherwise requires, the definition of state is the same as given in Part 3. अब हम लोगों ने पहले क्या definition पढ़ी थी state की, हम वो देख लेते हैं. The definition given in Article 12 shall apply in this part as well as, which says state क्या क्या include करता है, क्या state में होता है. तो वो state की definition में it's the government of India, Parliament of India, government of each states, legislature of each states, all the authorities, whether local or any other, which are the part of Indian territory और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. ये जो स्टेट की डेफिनेशन हमको पहले दी गई थी, यही डेफिनेशन एज इट इज इस आने वाले पार्ट में, डीपीएसपी के पार्ट में, पार्ट 4 में एज इट इज अप्लाई होगी. नेक्स्ट इज आर्टिकल 37. This article mentions the two important characteristics of DPSP. कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है ये डीपीएसपी के बारे में, और वो क्या होंगे. नंबर 1, इसने बताया कि ये जो है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिएबल नहीं होता है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड दैट डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज दीज आर सर्टेन डायरेक्शंस. ये वो डायरेक्शंस हैं, ये वो गाइडलाइंस है जिनको स्टेट देखती है और उनको देखते हुए लॉज और पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है. एंड they are very basic and essential for the governance of the country. अब क्योंकि इसमें जो बातें की गई हैं, जो आर्टिकल्स में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, वो इस नेचर के हैं कि वो एक कंट्री को अच्छी तरह से गवर्न करने के लिए काम में आते हैं. The provisions mentioned in this part shall not be enforceable in any court, and the principles laid down in this part are fundamental for the governments of the country. The state must make laws according to it because the ultimate aim of the state is, स्टेट का अल्टीमेट मेन मोटो क्या होता है कि सिटीजन जो है उनका वेलफेयर रहे. अब उनके वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए जो जो तरह से उनको लॉज और पॉलिसीज बनानी है, तो उस पॉलिसीज और उन लॉज को बनाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, गाइडलाइंस देने के लिए डीपीएसपी जो थी बुलाया गया था. नाउ टॉकिंग फर्दर अबाउट डीपीएसपी, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई थी. डीपीएसपी में 3 प्रिंसिपल्स फॉलो किए गए: सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल प्रिंसिपल. और इन प्रिंसिपल्स के अंडर सर्टेन आर्टिकल्स आते हैं. एज यू कैन सी इन द फ्लो चार्ट गिवन, सोशलिस्ट प्रिंसिपल कंसिस्ट्स ऑफ आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A and article 47. Whereas Gandhian principles constitutes of article 40, 43, 43B, 46, 47 and 48. Liberal principles constitutes of 44, 45, 48, 48A, 49, 50 and article 51. अब हम ये बात करते हैं कि इन आर्टिकल्स में ऐसी क्या बात कही गई है और इन आर्टिकल्स को अलग अलग प्रिंसिपल्स में क्यों डाला. सो कमिंग टू द सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो यूज करता है और उस तरह से इसने इसका फ्रेमवर्क जो है वो ले डाउन किया. इसका अल्टीमेट एम क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो सारे सिटीजन्स को दी जाए, ताकि स्टेट जो है वो एक वेलफेयर स्टेट को अचीव हुए. These articles were there in the Indian Constitution. Political and economic justice. अब ये 3 ऐसी जस्टिस है which is really important. It directs the state to secure a social order which provides social, political and economic justice.
सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस बेसिकली द जस्टिस काइंड ऑफ जस्टिस मीन्स कि जो सोसाइटी जो है, जो क्लास ऑफ पीपल है, उनके बीच में किसी भी तरह के डिफरेंसेस ना हो और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो अचीव हो। इकोनॉमिक जस्टिस टॉक्स अबाउट दी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वगैरह के बारे में कि हर किसी को उतना सस्टेन, उतना पैसा हर किसी के पास हो तो सस्टेन अ गुड लाइफ। ठीक है। सो इन तीन चीजों के बारे में आर्टिकल 38 जो है वो बात करता है। आर्टिकल 38 क्लॉज 2 says that state shall reduce the inequalities faced by the people on the grounds of income, status, facilities, opportunities. अगेन, अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो पीपल जो ये इनइक्वालिटीज फेस करते हैं, तो स्टेट को इन्हें रिड्यूस करना चाहिए। अब इन्हीं इस आर्टिकल 38 को देखते हुए भी जो स्टेट है वो लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम कर सकता है। Coming next to article number 39, it mentions that the principle that all the principles of policy which must be followed by the state. इसने बेसिकली ये बताया है कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं जो कि स्टेट को फॉलो करने चाहिए। इसको हम लोग चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी कहते हैं। So it has certain points which is mentioned under it. That is adequate means of livelihood जो है वो मिलना चाहिए सबको। Ownership and control of material resources. It talks about common ownership कि जो material resources हैं उन सब उनकी availability जो है वो हर किसी को होनी चाहिए। Concentration of wealth and means of production doesn't result in the common loss common to all or which causes detriment to all citizens. अगर हम लोग वेल्थ और मीन्स का जो हम कंसंट्रेशन है उसको इस तरह से रखना चाहिए कि वो किसी को लॉस ना दे, किसी को लॉस प्रोवाइड ना करे और हर किसी के पास जो इनकम सोर्स है, जो वेल्थ है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। नेक्स्ट इट टॉक्स अबाउट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एज वी हैव सीन, यहाँ पे उसने ये कहा, इसने बताया कि वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, जिस तरह का आप काम करते हैं उस काम के लिए आपको इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिलना चाहिए। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, इनके लिए भी हमको कुछ ऐसे लॉज पॉलिसीज बनाने चाहिए जो कि वर्कर की राइट्स को देखते, उनकी राइट्स को जो है एम्पावर करे, उनको एम्पावर करे। चिल्ड्रन गिवन अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर। अब ये जो पॉइंट्स आपने देखे हैं, यू मस्ट रिलेट कि इन पॉइंट्स को देखते हुए काफी सारे ऐसे एक्ट्स हैं और लॉज हैं जो कि लाए गए थे। हमारा फैक्ट्रीज एक्ट है, लेबर लॉ है, इट टॉक्स अबाउट एवरीथिंग अबाउट वर्कर्स। ठीक है। इक्वल पे इक्वल वर्क जो आ गया यहाँ पे, हम लोग को पता है कि वुमेन्स को भी कैसे अपॉर्चुनिटी दी है। देयर आर सर्टेन लॉज मेड फॉर वुमेन। चिल्ड्रन गिवन अपॉर्चुनिटीज, चिल्ड्रन को राइट टू एजुकेशन जो है वो मिला गया है। इन चिल्ड्रन के लिए भी देयर आर डिफरेंट एक्ट्स व्हिच वर मेड एंड फॉर्मुलेटेड ताकि उनका जो डेवलपमेंट है वो एक हेल्दी मैनर में रहे।
Okay, so coming back to a topic. So I have seen a question in the chat and it says, aren't Adani and Ambani floating economic justice principle? Why don't we have unemployment claim so as to further the spirit of economic and social character? See, talking about the major player of the economy, we know there are certain individuals who are holding a very big portion of wealth under them, right? और सबका ये मानना है कि अगर उनके पास इतना ज्यादा पैसा है तो वो ही क्यों ना अपना पैसा गरीबों में बांट दे या समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट उनका इंडिविजुअल बेसिस पे, those person are running their own business and earning profits out of it, right? तो यहाँ पे गवर्नमेंट can't stop any individual कि आप इतना मत कमाइए या आप इतना बिजनेस ना करिए. And talking about unemployment claim as to further the spirit of economic and social charter. Okay. Unemployment claim government को देना चाहिए. This is what you're asking for, right? Aryan? Okay, Aryan, you could please reply to my thing. The answers to your questions I would be giving before after I complete the topic of DPSP. So coming back to the topic. Now further there are different more articles. Article 41 talks about the welfare government. Article 42 talks about securing just and human work and maternity relief. कि कैसे there should be a good working environment and maternity relief females को मिलना चाहिए. Article 43 talks about fair wages and decent standard of life. इतना minimum wage जो है वो एक पर्सन को जो कि काम कर रहा है डेली वेज पे अगर कोई काम कर रहा है तो एक मिनिमम वेज जो है वो सेट होना चाहिए और उनको उतना अमाउंट मिलना चाहिए जिससे कि वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो जी सके. Next, it's Article 47. It talks about nutrition, standard of living, and public health. State shall look into the matter of raising the level of nutrition and the standard of living of its people. State को जो है वो इस तरह के स्टैंडर्ड बनाने चाहिए जिससे कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है और पब्लिक हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे. State should also endeavor to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health except for medical purpose. स्टेट जो है अब ये जो सारी बातें इन आर्टिकल्स की डायरेक्शंस दीज आर द गाइडलाइंस जो कि स्टेट को देखनी चाहिए. ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? Just reminding you again. On the next point, it said that there are many social development programs. अब आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे social development programs जो है वो state जो है वो करती है, such as National Health Mission, Midday Meal Scheme, etc., which target the marginalized sections of the society, that is women, children, weaker sections, etc., and are inspired by this DPSP. ये जो programs होते हैं, काफी सारे laws होते हैं, maternity relief के लिए, women के लिए काफी सारे laws जो हैं वो बनाए गए. वो क्यों बनाए गए और वो किस आइडिया से बनाए गए, तो वो उन सब चीजों का, उन लॉस का, उन पॉलिसीज जो थी उनका इंस्पिरेशन क्या रहा, डीपीएसपी जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा.
नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं उन आर्टिकल्स की जो कि गांधी प्रिंसिपल के अंडर आते हैं. So these principles reflect the program of reconstruction ideology propagated by Gandhi through the national movement. In order to fulfill his dream, some of his concepts has been included in the form of DPSP. जो आइडियोलॉजी थी उस टाइम पे जो कि महात्मा गांधी ने प्रोपगेट की थी, उन आइडियोलॉजीज को, उनके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा लेकर हमने ये आर्टिकल्स में डाला. So Article 40 here says and talks about the organization of panchayats. It says that the state shall organize panchayat system and should grant them such powers which is necessary for the functioning of units. यहाँ पे पंचायत की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई थी in Article 40. Next, Article 43, it talks about the fair wages and decent standard of life. Article 43B talks about the promotion of cooperatives. It was inserted by 97th Amendment Act 2011. It says that state shall endeavor to promote the management of cooperative societies to help the people who are engaged in the same. आगे के आर्टिकल्स में आर्टिकल 46 जो है वो प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है कि इनकी प्रोटेक्शन एससी एसटीज और वीकर सेक्शंस फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस. हमको पता है कि जो लोअर ग्रुप था, ये जो एससी एसटी से, इनको हमेशा एक्सप्लॉइट किया गया, तो इनका एक्सप्लॉयटेशन और आगे ना हो, तो इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी आर्टिकल 46 ने ये बात करी कि जो स्टेट है उसको प्रमोट करना चाहिए एक स्पेशल केयर इंक्लूडिंग एजुकेशन सेक्टर में इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके को देखते हुए स्टेट को ऐसी लॉज और पॉलिसीज बनानी चाहिए जो कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे. आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ एंड पब्लिक हेल्थ की बात करी गई. आर्टिकल 48 ने बताया अबाउट साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. यहाँ पे स्टेट जो है उसको ऑर्गेनाइज ऐसा करना चाहिए कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, अब एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हुए स्टेट को कौन सी लॉज, किस तरह की पॉलिसीज जो है वो बनानी चाहिए, कौन सी ऐसी ब्रीड्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए. और आगे इसने बात करी कि जो कैटल्स हैं, काउज हैं, उनका स्लॉटर जो है वो प्रोहिबिट करा जाए. तो स्टेट को इन सब चीजों को देखना है. Next, it's liberal and intellectual principles. These principles follow the liberalism ideology. The articles which follow this approach is under DPSP are Article 44, 45, 48, 48A, 49, 50 and Article 51. Article 44 talks about the Uniform Civil Code. There should be a provision for the citizens to secure. There should be a provision for the citizens to secure a uniform civil code throughout the territory of India in order to simplify things and reduce ambiguity in the laws. अब यूसीसी का आपने देखा हो तो ये हमेशा एक डिबेट का मुद्दा रहा है कि क्या इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लाना चाहिए या नहीं. सो कीपिंग दैट डिबेट असाइड, ये जो आर्टिकल है इसने यूसीसी के बारे में बात करी. अब जो स्टेट है अगर उसे ऐसा लगता है दैट यूसीसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, तो उसके बारे में डीपीएसपी ने हमको आर्टिकल 44 में बताया है. आर्टिकल 45, it contains about the provisions for free and compulsory education for the children. उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए कंट्री में. द स्टेट शैल मेक लॉज, अगेन स्टेट को ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करे चिल्ड्रन को जब तक कि वो 14 इयर्स ऑफ एज के ना हो जाए.
The provision was incorporated by the virtue of the 86th Amendment 2002 in the Constitution of India. Article 48A talks about the environment and wildlife protection. State को ऐसे कुछ endeavor लेने चाहिए जहाँ पे वो wildlife को, environment को protect करे, उससे related laws बनाए. And you know that we are having certain laws for environment protection. हमारे पास अलग अलग तरह के laws जो थे वो बने गए. Article 49 talks about the protection of monuments and places and objects of national importance. ऐसे कोई भी मॉन्यूमेंट्स, ऐसे कोई भी प्लेसेस जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, तो स्टेट को उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ ऐसे लॉज वगैरह बनाने चाहिए. Next, Article 50 talks about the separation of judiciary from the executive. There should be a line between the judiciary and executive body of the government and the public services of the state, as it makes it easier to both and not interfere in each other's works and function independently. ये आर्टिकल बेसिकली ये बताता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना चाहिए. एक लाइन ऑफ डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन ऑफ डिफरेंस रहेगा तो ये जो बॉडीज हैं ये इजीली फंक्शन कर पाएंगी. नेक्स्ट, आर्टिकल 51 it talks about the promotion of international peace and security. यहाँ पे जो स्टेट है उसको ये देखना चाहिए कि वो प्रमोट करे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन करे फ्रेंडली रिलेशंस दूसरे नेशंस के साथ में, foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of one person with another for maintaining harmony. आर्टिकल 51 सीधा सीधा बस हमको सिर्फ इतना बताता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए. एंड वी नो दैट गवर्नमेंट जो है वो, इंडिया जो है वो अलग अलग ट्रीटीज जो है वो साइन करता है. वो काफी अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उसने पार्ट भी ले रखा है. तो ये सब क्यों, और ये सब क्यों हो रहा है, कहाँ से इसका आइडिया आया? तो आर्टिकल 51 इसकी बात करता है अबाउट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. So now here in this table you can see कि कौन से अमेंडमेंट में, कौन से अमेंडमेंट से कौन से आर्टिकल्स जो थे वो लाए गए. 42nd अमेंडमेंट जो था उससे आर्टिकल 39, 39A, 43A एंड 48A लाया गया. अमेंडमेंट 44 जो था उसमें आर्टिकल 38 का क्लॉज 2. 86th amendment, it basically changed the subject of the article 45 in the DPSP and brought it within the ambit of fundamental rights mentioned in part 3 as article 21A and has been made for children between the age group of 16 to 14 years of age. 97th amendment जो है वो article 43B के बारे में बात करता है. ये जो बातें थी, ये जो आर्टिकल्स थे, दिस ऑल एंड ईच आर्टिकल टॉक्ड अबाउट डीपीएसपी, कि कैसे ये जो डीपीएसपी है इसके जो आर्टिकल्स है वो स्टेट को हेल्प करता है, स्टेट को किन किन चीजों को कंसिडरेशन में लेना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी लॉ और पॉलिसी. राइट. तो अपना अगला टॉपिक जो अब हम देखेंगे इट इज अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज. उसको देखने से पहले लेट्स जस्ट सम अप डीपीएसपी में हमने क्या क्या बातें करी, क्या क्या उसमें पॉइंट्स थे. तो हमको ये पता लगा कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिफाइबल होते हैं, कंसीडरिंग जो स्टेट है उसके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं कि वो हर एक चीज को इम्प्लीमेंट कर सके, पर वो इस डीपीएसपी को देखते हुए लॉज वगैरह फॉर्मुलेट कर सकता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डीपीएसपी इज नॉन जस्टिफाइबल. इसमें ऐसे सारे आइडियल्स होते हैं जो कि
एक स्टेट जो है जिसको स्टेट को फॉलो करने चाहिए। So you can just go through the origin and scope of fundamental duty for a minute. अभी हमने बात कल की क्लास में भी टॉक्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स, फिर हमने डीपीएसपी के बारे में बात करी, उसके बाद अब आती है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स इज समथिंग जिसके लिए हर इंडिविजुअल फटाफट तैयार हो जाता है कि ये हमारे राइट्स हैं और हम इसको क्लेम करना चाहते हैं। बट व्हाट अबाउट ड्यूटीज? क्या हम एज एन इंडिविजुअल हमारी ड्यूटीज उतना फुलफिल करते हैं? और क्या ड्यूटीज फुलफिल ना करने पे हमें कुछ सजा हो सकती है? कहाँ से ये फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया आया, क्यों उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, एंड एवरीथिंग, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं। तो अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी के ओरिजिन का। So there was a committee, स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया बाय 42nd अमेंडमेंट, जो कि 1976 में हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So this is something to keep in mind and something very important to remember कि स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू की रिकमेंडेशंस के थ्रू 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटी जो थी वो लाई गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज वर ओरिजिनली कितने इन नंबर्स? इट वाज 10 इन नंबर्स, बट इन 2002 86th अमेंडमेंट आया और उसने उसका नंबर जो है वो 10 से 11 कर दिया। तो फंडामेंटल ड्यूटी में दो अमेंडमेंट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। नंबर 1 इट इज 42nd अमेंडमेंट, नंबर 2 इट इज 86th अमेंडमेंट। ठीक है, अब ये जो 11th ड्यूटी थी, इट मेड इट कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी पेरेंट एंड गार्डियन टू प्रोवाइड द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू देयर चाइल्ड who is more than 6 years but less than 14 years of age. ये था फंडामेंटल ड्यूटी का ओरिजिन। अब इसके हम स्कोप की अगर बात करते हैं कि व्हाट इज द स्कोप, कितना वाइडर या कितना नैरोअर फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो अपनी जगह होल्ड करता है। So neither there is a direct provision in the constitution for the enforcement of these duties, nor there is hardly any legal sanction in order to prevent violation of these duties. These duties are obligatory in nature. Again, ये जो duties है ये obligatory in nature है। The following facts provide for the importance of fundamental duties. अब हमको अगर हम ये देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, सो इफ वी थिंक एज अ जनरल पब्लिक, अगर हम देखें तो हमें ये पता लगेगा कि ये जो ड्यूटीज हर एक इंडिविजुअल पे जो लाई गई थी, इफ एवरी पर्सन विल फुलफिल हिज और हर ड्यूटीज, तो कहीं ना कहीं राइट के वायलेशंस होना अपने आप ही कम हो जाएंगे। दिस इज समथिंग विच एवरीवन वुड अग्री कि हर एक इंसान इंडिविजुअली अगर अपनी ड्यूटी फुलफिल करेगा तो वो किसी दूसरे के राइट वायलेट कर ही नहीं पाएगा। A person should respect the fundamental rights and duties equally because
in any case, if the court comes to know that a person who wants his or her rights to be enforced is careless about his or her duties, then the court will not be lenient. अगर आप अपनी ड्यूटीज ही बिल्कुल फुलफिल नहीं करते हैं और आप कल को अपने राइट्स को इन्फोर्स कराने जा रहे हैं, ये नॉलेज होती है, तो ऐसे में लीनियंसी आपके ऊपर नहीं बरती जाएगी. Any ambiguous statute can be interpreted with the help of fundamental duties. The court can consider the law reasonable if it gives effect to any of the fundamental duties. In this way, the court can save such law from being declared as unconstitutional. ठीक है, इसमें इसने ये क्या बताया स्कोप में कि कोई लॉ जो है उसको हम रीजनेबल मान सकते हैं अगर वो किसी ना किसी फंडामेंटल ड्यूटी को इफेक्ट दे रहा है, और ऐसे में वो जो लॉ है उसको हम बचा सकते हैं फ्रॉम बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल. So now what 42nd Amendment 1976 was all about? The 42nd Amendment 1976 was approved during the emergency period. The Indian National Congress, which was at the time headed by Indira Gandhi, approved this amendment. इसको किसने अप्रूव किया था? इंदिरा गांधी ने इस अमेंडमेंट को अप्रूव किया था. And this was the most controversial amendment. इसके जो प्रोविजंस थे वो अलग अलग डेट्स पे आए थे. आप यू कैन सी दैट मेनली किन डेट्स पे कौन से अमेंडमेंट्स आए थे. सो मोस्ट ऑफ देम केम इनटू फोर्स ऑन द 3rd of January, और अदर जो थे वो 1st April 1977 को आ गए थे. This amendment is also known as mini constitution or constitution of Indira because wide changes were brought in the constitution. पूरे set of duties जो थी वो constitution में लाई गई थी. Next was 86th Amendment 2002. ये जो amendment था, it added a fundamental duty which state that every citizen who is a parent, ये जो बात थी हमने स्टार्टिंग में भी करी थी कि कोई भी ऐसा पेरेंट जिसका जो पेरेंट जो है उसको एक अपने चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए किस चीज की, राइट टू एजुकेशन की, उस चीज के बारे में 86 अमेंडमेंट ने बात की थी. The unicational judgment provided that all the citizens who are below the age of 14 years have the right to free and compulsory education. ठीक है, इस जजमेंट ने क्या बताया था कि हर एक चिल्ड्रन को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का राइट होता है. Due to an increasing public demand for education, the government worked towards making education as a fundamental right. ये हम भी जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना गया जिसमें चिल्ड्रन को कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन जो थी वो प्रोवाइड की गई. अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसमें भी हम 3 तरह की ड्यूटीज देखेंगे. पहली ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन, दूसरी बात करता है ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, एंड नेक्स्ट इज ड्यूटी टुवर्ड्स इंडिविजुअल. तो पार्ट 4A जो है उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 51A जो कि डिफरेंट ड्यूटीज के बारे में बात करता है. 11 ड्यूटीज जो थी उसमें प्रोवाइड करी गई, और जो एक ड्यूटी थी बिकॉज वी रेड कि पहले 10 ड्यूटीज ही थी बट 11 ड्यूटी वो जो थी वो 86 अमेंडमेंट से हमारे पास में आई थी. सो दीज आर द ड्यूटीज जो बताई गई है. नंबर 1, to respect the constitution. It deals its ideals and institutions and the national flag, national anthem. It basically talks about कि एक इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सबको. Next, it talks about the noble ideas that inspire the national struggle to gain independence. One should cherish them. One should protect and uphold the sovereignty, unity, integrity of India. So these are what duties, these duties are towards the nation. One should respect the country and render national service when called upon. ये जो duties थी ये
टुवर्ड्स नेशन के बारे में बात कर रही है कि एक इंडिविजुअल की नेशन के प्रति क्या क्या ड्यूटीज होंगी. नेक्स्ट, one should promote harmony as well as the spirit of common brotherhood amongst the citizens of India. The next duty talks about one should value and preserve the heritage of our composite culture. One should protect and improve the natural environment, including forest, lakes, rivers, wildlife, and a citizen should have compassion for living creatures. One should not only develop the scientific temperament and humanism, but also the spirit of inquiry and reform. One should always safeguard public property. अब ये जो राइट्स थी किसके बारे में, ये जो ड्यूटीज थी, सॉरी, ये जो ड्यूटीज थी ये इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है कि एक इंडिविजुअल को क्या क्या करना चाहिए, क्या उसकी ड्यूटीज है. उसको पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको सेफगार्ड करना चाहिए. One should always strive towards excellence in all spheres of life and also for the collective activity so that the nation continues with its endeavor and achievements. One should always provide the opportunity of education to his child or ward between the age of 6 to 14. ये जो था ये 86th amendment से add किया गया था. Earlier there were only 10 duties, but 86th amendment जो था उसने एक और duty add करी थी. दोनों ही तरह की मॉरल और सिविक ड्यूटीज जो थी वो फंडामेंटल ड्यूटीज में डाली गई. मॉरल ड्यूटीज क्या मतलब, मोरली क्या चीज सही होनी चाहिए, हमको कौन सी ड्यूटीज निभानी चाहिए, लाइक ब्रदरहुड एक्सेट्रा, उसके बारे में बात की गई. सिविक ड्यूटीज यानी कि जो हमारी जो ड्यूटीज होनी चाहिए टुवर्ड्स नेशन, तो वो भी, उसकी भी बात जो थी फंडामेंटल ड्यूटीज में की गई. फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फॉरेनर्स को भी अप्लाई होते हैं also, but the fundamental duties are only restricted to the citizens of India. जो duties हैं वो किस पे restricted है, only to the citizens of India. The fundamental duties are not enforceable in nature. DPSP जो था उसको भी हम enforce नहीं करा सकते थे. That were non-justiciable. और यहाँ पे जो fundamental duties है इनको भी हम enforce नहीं करा सकते. ये non-enforceable in nature होता है. Non-legal sanction can be enforced by the government in case of their violation. These duties are also related to Hindu traditions or mythology, like paying respect to the country or promoting the spirit of brotherhood. ये सारी बात थी फंडामेंटल ड्यूटीज की. अब अगर हम ये सोचते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो और फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों की अगर हम मिलकर बात करते हैं कि एक दूसरे से क्या रिलेटेड है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो द ड्यूटीज. ड्यूटीज निभाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Although the fundamental rights were introduced in the constitution much before the fundamental duties, duties जो थी वो बाद में आई थी. Fundamental rights were already introduced in the constitution much before to it. Again, 42nd amendment से fundamental duties लाई गई. This is something really important to be remembered. Article 21 of Indian Constitution provides for right to education. ठीक है, हम लोगों ने जो 86th अमेंडमेंट से जो बात कही थी कि जो पेरेंट्स एंड गार्डियंस हैं उनको अपने चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, तो आर्टिकल 21 जो थी उसने फिर इसको एक राइट की तरह सामने लाया कि राइट टू एजुकेशन जो है इट्स अ फंडामेंटल राइट नाउ. सो बट इन टुडेज टाइम अगर हम देखें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि सबको अपनी राइट्स तो पूरी करनी है, बट none of them want to perform their duties. There are many examples which shows that people while using their fundamental rights avoid their fundamental duties. एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुआ था. People were exercising their fundamental right and freedom of speech and expression. अब अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो क्या आप एंटी नेशनल स्लोगन्स बोल सकते हैं? क्या आप ऐसी कोई बातें बोल सकते हैं जो कि नेशन के हित में नहीं है? तो ऐसा कुछ हमारे सामने यहाँ पे एक एग्जांपल आया था. While exercising this right, they violated their fundamental duty that is laid down in Article 15(1)(a) Clause C.
That is the power, unity, integrity of the country must be protected by its citizens. तो आप अपनी फ्रीडम जो थी उसको, जो राइट थी आपके पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको आपने इस लेवल तक आपने एक्सक्यूट किया कि आप कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी फुलफिल करना भूल गए। आगे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि वोट पाने के लिए रिलीजन का यूज करते हैं एंड डिफरेंट टैक्टिक्स प्ले करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी ड्यूटीज फुलफिल करते ही नहीं है। और डेमोक्रेसी जो है, it cannot establish its deep root in the society until and unless the citizens don't compel with their fundamental rights with their fundamental duties. राइट्स और ड्यूटीज दोनों साथ में चलेंगी, साथ में अच्छे से अचीव होंगी, तभी जाके वी कैन से दैट आवर कंट्री हैज अचीव्ड अ डेमोक्रेसी व्हिच इज द बेस्ट। while enforcing their fundamental rights they should fulfill their fundamental duties। आप अपनी राइट्स जो है आप बिल्कुल उनको यूज कर सकते हैं, आप अपनी राइट्स जो है वो यूज कर सकते हैं, बट आपको अपनी ड्यूटीज निभाना भी उस टाइम अपने माइंड में रखना पड़ेगा। सो नाउ देयर आर डिफरेंट केस लॉज। ऐसे बहुत सारे केस लॉज थे जिसने बात करी फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी के बारे में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर केशवानंद भारती केस, सबसे पहले केस जिसकी हम बात करेंगे इट्स केशवानंद भारती केस। सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट अडॉप्टेड अ व्यू दैट fundamental right and DPSP are not only complementary to each other, but they would supplement each other, providing some goals to establish a welfare state. जो DPSP है, it provides a direction, a guideline to state, right? State उससे related laws और policies formulate कर सकता है। वही fundamental rights जो है वो हमें कुछ ऐसे अधिकार देती है। तो कहीं ना कहीं these both are not only complementary but also supplement each other. The other case which is here is Javed versus State of Haryana. इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ रेट करें, जो कि आर्टिकल 51A में दिया है। In the case of Gujarat versus Mirzapur, the Supreme Court held, while considering the provisions regarding Article 48, 48A, and 51G of the DPSP and fundamental duties that are provided in Article 51A of the Constitution, it plays a significant role by testing the constitutional validity of any statutory provision or of any executive act। ऐसा कोई executive act या फिर ऐसा कोई statutory provision जो कि बना है, उसकी constitutional validity टेस्ट करने के लिए डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा that the reasonableness of any restriction that is cast by the lay down on the fundamental rights in the form of regulation, control or prohibition can be tested by taking the fundamental duties and the DPSP of state policy into account। DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इन दोनों को अकाउंट में रखते हुए, इन दोनों को देखते हुए इस केस में स्टेट ने ये कहा था कि इफ कीपिंग दीज बोथ इन माइंड, जो भी हम लोगों ने स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बनाए, जो भी ऐसे एक्ट्स जो थे, एग्जीक्यूटिव एक्ट्स जो थे वो बनाए, उनको हम उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है उसकी हेल्प के लिए वी कैन यूज डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। And also it was observed in the case of N.K. Bajpayee versus Union of India that there is a common thread which runs between part 3, 4 and 4A of Indian Constitution. The first part provides us with the fundamental rights, जबकि जो दूसरा part है, it talks about the basic principles of governance of the state, and the third part provides for the fundamental duties of citizen of India. The court should consider all the constitutional aspects of fundamental rights, duties, and DPSPs while interpreting any provision। इस केस में स्टेट कोर्ट ने यही कहा था कि इन तीनों प्रोविजंस को, इन तीनों पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए
इंटरप्रेट करते हुए हमें किसी प्रोविजन की आगे बात करनी चाहिए कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट क्या है. So this was all about DPSP and fundamental duties. So concluding it, basically DPSP and fundamental duties ये are sections of the Constitution of India that prescribe the fundamental obligations. ये तो दोनों चीजें हैं. ये एक obligation देती हैं कि स्टेट की क्या ऑब्लिगेशन है, सिटीजन्स की क्या ऑब्लिगेशन है, सिटीजन्स की क्या ड्यूटीज है जो उन्हें फुलफिल करनी चाहिए, उनके बारे में डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज जो था वो हमें बता रहा था. Fundamental duties are defined as a moral obligation of all citizens to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India. अब क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हर तरह की ड्यूटी के बारे में बात कर रहा था जो हमारी नेशन के प्रति होनी चाहिए, सोसाइटी के प्रति होनी चाहिए, इंडिविजुअल आपकी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, हर तरह की ड्यूटी के बारे में फंडामेंटल ड्यूटी जो था वो बात कर रहा था. तो कहीं ना कहीं इट अपहोल्ड्स द यूनिटी ऑफ इंडिया. There is a need of these duties to be obligatory for all citizens, subject to the state enforcing the same by means of a valid law, or else the law stands in a very disadvantageous position. अभी जो ड्यूटीज है, ये जो डीपीएसपी है, ये एक इट गिव्स अ डायरेक्शन टू द स्टेट कि on what basis, on what grounds they can formulate a law or policy, right? तो अगर ये डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हुए लॉज बनेंगे ही नहीं तो वो जो लॉ जो बना है वो एक बहुत डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आ जाएगा, बिकॉज वी डोंट नो द बेसिक कि द बेसिक रीजन, द बेसिक रूट कि किस वजह से, किस रूट से जो है ये लॉ बना गया. And the Supreme Court has finally issued directions to the state in this regard with the view towards making the provisions effective and enabling a citizen to properly perform their duties. This project was an attempt to check the enforceability of the fundamental duties under the different statutes which have been referenced to the Indian Constitution. ये सारी जो बात हमने पढ़ी, it was all about DPSP and fundamental duties. फंडामेंटल राइट्स जो थे, जो हमने कल पढ़ा था, ये एनफोर्सेबल होते हैं. अगर आपका जो राइट है वो वॉयलेट होता है, देन यस यू कैन अप्रोच द कोर्ट डायरेक्टली. बट अगर आप डीपीएसपी की बात करते हैं एंड इफ यू से दैट स्टेट हैज नॉट फुलफिल्ड और नॉट अचीव्ड सर्टेन डीपीएसपी, तो वो दैट इज नॉन, उसको आप एनफोर्स नहीं करा सकते हैं. सिमिलरली आपकी जो ड्यूटीज हैं वो भी नॉन एनफोर्सेबल होती है and it cannot be taken, no one can take you to the court or in the case of non-fulfillment. So this is all about fundamental duties and DPSP. And we'll be meeting tomorrow with another topic of Indian Constitution.